کہتے ہیں کہ زندگی کبھی ایک جیسی نہیں رہتی، کبھی یہ آسمانوں پر لے جاتی ہے اور کبھی زمین پر گرا دیتی۔ ناکامی وہ دروازہ ہے جس سے گزر کر انسان کو کامیابی ملتی ہے۔ جب اکاؤنٹ صفر پر آ جائے تو پھر کروڑوں تک کا سفر کیسے ہوتا ہے، اور جب اللہ کا کرم ہوتا ہے تو ناکامیوں سے کامیابیوں کے دروازے کھل جایا کرتے ہیں۔ شیطان انسان کے دل میں مایوسی پیدا کرتا ہے، دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ جس انسان کا یقین اللہ پر ہوتا ہے وہ پر امید رہتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ جیت کے قریب جاتے جاتے اپنی منزل کو پا لیتا ہے۔ 90% لوگ ایک ایسی غلطی کرتے ہیں کہ وہ ناکامی کو ہی انجام سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے اکثر لوگوں کے لیے کامیابیوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک روحانی راز بتانے جا رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص تھا جس کے بارے میں لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ تو کامیابی کی مثال ہے۔ اس کا بزنس، اس کا کاروبار چلتا ہی نہیں تھا، بلکہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اس کا بزنس تو دوڑتا ہے۔ وہ ایک سکسیسفل انسان تھا، اکاؤنٹس میں لاکھوں نہیں کروڑوں روپے موجود رہتے تھے، کیونکہ وہ بزنس کیا کرتا تھا۔ گھر میں خوشیاں تھیں اور چہرے پر مسکراہٹ رہا کرتی تھی، چہرے پر ایک سکون ہوا کرتا تھا۔ ہر صبح امید لے کر آتی تھی اور ہر رات اس کو سکون دے کر جاتی تھی۔ مگر پھر کچھ ایسا ہوا کہ حالات بدل گئے، بزنس میں نقصان پر نقصان ہوتا چلا گیا، کامیابیاں ناکامیوں میں تبدیل ہوتی چلی گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی عرصے میں اس کا بزنس ڈاؤن ہو گیا، اور کچھ وقت بعد اپنے کاروبار کرنے سے بھی محروم ہو گیا۔ اتنی بڑی تبدیلی اس کی زندگی میں آئی ہوگی، آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ اس کی فیلنگ کیا ہوگی، اس کے احساسات کیا ہوں گے، کیسا درد اور کیسی تکلیف، مشکلات سے وہ گزر رہا ہوگا۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ جب بزنس ختم ہوا تو کاروباری دوست بھی آہستہ آہستہ دور ہو گئے، اور ایک وقت تھا کہ اس کی زندگی میں اس کے ارد گرد ایک لوگوں کا ہجوم ہوا کرتا تھا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ تنہا ہو گیا، اکیلا ہو گیا۔ ایک دو لوگوں کو چھوڑ کر باقی تمام اس کے فرینڈز اس سے دور ہو گئے۔ ناکامیاں اس کی زندگی میں آتی جا رہی تھی، اسٹریس اس کی زندگی میں بڑھتا جا رہا تھا، اینزائٹی اور ڈپریشن والی کیفیات سے وہ گزرنے لگا تھا۔ ایک طرف تو باہر کی دنیا میں جنگ تھی، اور ایک جنگ وہ اپنے اندر ہی کر رہا تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس کا اکاؤنٹ صفر ہو گیا، خاموشیاں، اداسیاں، دل پر بوجھ اور دماغ میں ٹینشن، اور ایک سوال اس کے اندر سے ابھرتا تھا کہ آخر یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا ہو رہا۔ مگر ایک رات ایسی آئی کہ اس کی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے وہی رات سب سے اہم تھی، کیونکہ اسی رات کے بعد ناکامیوں سے کامیابیوں کا سفر اس کا شروع ہوا۔ اس رات میں آخر ایسا کیا ہوا، اس بات کو بتانے سے پہلے میں کہنا چاہتا ہوں اپنے تمام سننے والوں سے اور اپنے تمام چاہنے والوں سے، اپنے تمام اسپریچول اسٹوڈنٹس سے، اپنے تمام روحانی شاگردوں سے، اور وہ تمام لوگ جو مجھ سے کنیکٹ ہیں اور کچھ نہ کچھ مجھ سے سیکھ رہے ہیں، آپ کے ساتھ یا آپ جن سے محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ اگر کسی بھی طرح کی کوئی اسپریچول پرابلم ہے، کوئی روحانی مسائل میں وہ مبتلا ہیں، شیطانی مسائل میں وہ مبتلا ہیں، بلیک میجک، ایول آئی، نیگیٹیوٹی، نیگیٹو انرجی، نیگیٹو فورس، جادو یا جنات کے اثرات کی وجہ سے پریشان ہیں اور جگہ جگہ علاج کروا کر تھک گئے ہیں، وہ اپنی اسکیننگ کروانا چاہتے ہیں، وہ اپنے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں، وہ تمام لوگ اور وہ تمام لوگ جو روحانیت کے مسافر ہیں، روحانی سفر میں چل رہے ہیں، روحانیت کو حاصل کر رہے ہیں، روحانی عاملین بن رہے ہیں، اور وہ تمام لوگ بھی جو میڈیٹیشن کیا کرتے ہیں، مراقبہ کیا کرتے ہیں، جو مائنڈ سائنسز، مائنڈ پروگرامنگ، اورا ہیلنگ، اورا کلینزنگ، انرجی ہیلنگ سسٹم،
इस्लामिक हीलिंग सिस्टम और माइंड साइंसेस से रिलेटेड मुख्तलिफ प्रैक्टिसेस को और एक्सरसाइजेस को कर रहे हैं, और उनको किसी भी तरह की कोई दुश्वारी पेश आ रही है, या वो तरीका इलाज जानना चाहते हैं, या वो अपने लिए कोई रूहानी मश्क चाहते हैं, तो वो मेरे लाइव प्रोग्राम से फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरा लाइव प्रोग्राम उनकी ज़िंदगी को तब्दील करने के लिए अहम तरीन किरदार अदा करेगा। मैं काफ़ी अरसे से लाइव प्रोग्राम कर रहा हूँ, जिसमें मैं लोगों को स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट भी बताता हूँ, और इसी तरह से मुख्तलिफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के हवाले से अगर मेरे पास मैसेजेस या डायरेक्ट फ़ोन कॉल आ जाती हैं लाइव प्रोग्राम में, तो मैं उन्हें रिसीव करने की अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ, उनको गाइड करने की कोशिश करता हूँ, नेगेटिव एनर्जी रिमूव सेशन में उनको शामिल करता हूँ, उस नेगेटिविटी को भी रिमूव करता हूँ। ये इंसानी खिदमत के जज्बे के तहत मैं करता हूँ। तो आप मेरे लाइव प्रोग्राम को ज्वाइन करके फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हम चलते हैं नाकामियों से कामयाबियों का सफ़र तय करने वाले उस इंसान की जानिब, जिसकी लाइफ स्टोरी, ट्रू स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूँ, क्योंकि ये स्टोरी उसने मुझसे खुद ही शेयर की थी कि एक रात मेरी ज़िंदगी में ऐसी आई कि मैं वीडियो को स्क्रॉल कर रहा था बगैर किसी मकसद के और बगैर किसी उम्मीद के, कि अचानक मेरे सामने एक वीडियो आई इस्तग़फ़ार करने वालों के हैरान कुन वाक़यात। जैसे ही ये वीडियो मेरे सामने आई, मेरे दिल से ये आवाज़ आई कि इस वीडियो को देखें, इसको वॉच करें। जब वीडियो को वॉच करना शुरू किया तो हर लहजा, हर लफ्ज़ जैसे दिल में उतरता जा रहा था और सीधा दिल पर असर कर रहा था। ये बात जानी कि जो लोग टूट चुके थे, बिखर चुके थे, जो नाकामियों के दलदल में धंसे जा रहे थे, इस्तग़फ़ार करने की बरकत से उनकी ज़िंदगी संवरने लगी। नाकामियों से कामयाबियों का सफ़र उनका शुरू हुआ। वो वीडियो को देखता रहा और वीडियो के हर अल्फाज उसके दिल और दिमाग में उतरते रहे। माइंड पॉजिटिव होना शुरू हुआ, अंदर एक मोटिवेशन पैदा होना शुरू हुई, उदासी की जगह यकीन पैदा होना शुरू हुआ। और यही वो रात थी जिस रात उसने ये फैसला किया कि मैं दिल से इस्तग़फ़ार करूँगा और अस्तग़फ़िरुल्लाह को कसरत से पढ़ूँगा और अल्लाह का मैं ज़िक्र करूँगा और दिल से, अंदर से सच्चाई के साथ इस्तग़फ़ार भी करूँगा, अल्लाह से मदद भी मांगूंगा। अब आप ये पूछेंगे, और किस चैनल की वीडियो को देखते हुए उसकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आना शुरू हुई। वो आसिम इनायत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को वॉच कर रहा था और वो मेरी ही वीडियो को देख रहे थे, और मेरी ही वीडियोस को देखने के बाद फिर उन्होंने इस्तग़फ़ार करना शुरू किया, ज़िक्र इलाही करना शुरू किया। वो कहते हैं कि पहले मैंने ज़बान से इस्तग़फ़ार करना शुरू किया और मैं अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने लगा। ज़बान से ज़िक्र करता मैं चला गया और आहिस्ता-आहिस्ता ये मेरे दिल में उतरने लगा। मेरी आँखों में आँसू रहा करते थे और ज़बान पर ज़िक्र इलाही जारी होना शुरू हुआ और दिल से मैंने इस्तग़फ़ार करना शुरू किया। चलते फिरते भी मैं इस्तग़फ़ार किया करता था, मगर ख़ास तौर पर मैंने भी तहज्जुद के वक़्त की पाबंदी करना शुरू की। तन्हाई में बैठकर भी मैं इस्तग़फ़ार किया करता था और चलता फिरता लोगों के दरमियान भी मैं ज़िक्र इलाही करना शुरू हो गया। पहले मेरे दिल पर बोझ रहा करता था, मगर आहिस्ता-आहिस्ता मेरे चेहरे पर सकून आना शुरू हुआ। पहले मैं डीमोटिवेट रहा करता था, मगर अब मेरे अंदर से मुझे एक मोटिवेशन मिलना शुरू हुई और मेरे अंदर एक यकीन पैदा होना शुरू हुआ कि मेरी ज़िंदगी भी तब्दील हो जाएगी, कि मुझे काम करने का एक छोटा-सा मौका मिला। मैंने एक छोटे से काम का आगाज़ किया, ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ। मेरे पास जितनी स्किल्स थी, मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशंस थी, जितना तजुर्बा था और जितनी एनर्जी थी, मैंने अपने काम पर अपना पूरा फोकस किया, एनर्जी लगाई, ईमानदारी के साथ मैंने अपने काम को शुरू किया और उससे पहले मैंने अल्लाह से मदद मांगी। तो एक छोटे से काम मैंने किया और उससे मुझे एक प्रॉफिट हुआ। उसके बाद दोबारा मुझे एक और काम मिला और फिर मैंने उसे भी सर अंजाम दिया ईमानदारी के साथ, और फिर उस काम में मुझे कामयाबी मिली और थोड़ा सा प्रॉफिट मुझे हुआ। पहले तो मुझे काम ही नहीं मिला करते थे ना, आसान काम भी मुश्किल हो जाया करते थे, काम के रास्ते ही नहीं खुलते थे। मगर जब मैंने अल्लाह का जिक्र किया और जब मैंने इस्तग़फ़ार किया, तो वो ये कहते हैं कि पहले मुझे 1-2 काम मिले, फिर इसी तरह से मुझे काम मिलने का आगाज़ हुआ। फिर इसी तरह से मेरी ज़िंदगी में दोबारा से इन्वेस्टर्स आने लगे, क्योंकि इनके काम की नौइयत ऐसी थी कि हज़ारों रुपए से इनका काम शुरू नहीं हो सकता था।
बल्कि इनके काम को शुरू करने के लिए लाखों रुपए चाहिए होते हैं। काम की नौयत ऐसी थी। तो जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो मेरा काम था, जो मैं कभी किया करता था, जिसमें मैं कभी कामयाब रहा करता था, फिर उसी से रिलेटेड लोग मुझे मिलना शुरू हुए दोबारा से। अल्लाह ने मेरे रास्तों को खोला, एक काम से दूसरा काम, दूसरे काम से तीसरा काम, पहले छोटा काम, फिर थोड़ा उससे बड़ा, फिर थोड़ा उससे बड़ा, पहले कम प्रॉफिट, फिर थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट, और फिर बहुत ज्यादा प्रॉफिट मुझे होने लगा और मेरे काम का आगाज हो गया। अल्लाह ने मेरे कामयाबियों के रास्ते खोलना शुरू कर दिए और नाकामियों के रास्ते मुझ पर बंद होना शुरू हो गए। वही जिंदगी थी जो बिखर गई थी, वही जिंदगी दोबारा से संवरने लगी। इस्तग़फ़ार करने की बरकत से, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने की बरकत से, इस्तग़फ़ार करने की वजह से, और जब मैंने अपने ताल्लुक़ को अल्लाह से मज़बूत किया और जब मैं ज़िक्र इलाही करने लगा, तो मेरी ज़िंदगी में पॉज़िटिव चेंज आना शुरू हुआ। कारोबार वापस आ गया। जब कारोबार वापस आना शुरू हुआ, तो दौलत भी मेरी जानिब वापस आने लगी। मेरा जो ज़ीरो अकाउंट था, वो दोबारा से हज़ारों तक पहुँचा, लाखों तक पहुँचा और फिर करोड़ों तक पहुँच गया। जो मेरी खोई हुई इज्जत थी, वो भी वापस आई, लोग भी वापस आ गए और जिन साथियों ने साथ छोड़ दिया था, वो भी वापस आ गए। कामयाबी भी वापस मिल गई, मगर वो साहब मुझसे ये कहने लगे कि सब कुछ तो वापस आ गया अल्लाह के करम से, मगर मैं बदल गया। और जब प्राइवेट सेशन में मुझसे वो ये सब बातें कर रहे थे, तो मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही थी कि मेरी वीडियोस को देखकर बेशुमार लोगों की ज़िंदगियों में पॉजिटिव चेंज आया है। मेरे प्राइवेट सेशंस को लेकर बेशुमार लोगों की ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज आया है और मुझसे कनेक्ट होने के बाद वो लोग जो नेगेटिविटी की वजह से सालों से परेशान थे, उनकी ज़िंदगियों से नेगेटिविटी ख़त्म हुई है। यानी लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। जैसे जैसे मैं ये बात जान रहा हूँ, मुझे खुशी होती है और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। वो कहते हैं कि पहले सिर्फ कामयाबी थी, मगर अब कामयाबी के साथ सुकून भी आ गया है। वो कहते हैं कि पहले मेरे पास सिर्फ दौलत हुआ करती थी, मगर अब ये तब्दीली आई है कि दौलत तो मिल रही है, मगर अब मैं शुक्र अदा करने वाला इंसान बनता जा रहा हूँ और बन गया हूँ अल्लाह के करम से। पहले पूरा दिन कामों में मैं सर्फ किया करता था, अब मेरे हाथ कामों में लगे हुए होते हैं, दिल और जबान से मैं अल्लाह का जिक्र करने लगा। अब मैं जिक्र करने वाला और शुक्र अदा करने वाला इंसान बन गया हूँ। अगर आज आपकी ज़िंदगी में नाकामियाँ हैं, मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसका सलूशन आपको नहीं मिल रहा है और आपने इस बात का तहिया कर लिया है, अज़म कर लिया है कि मैं अपनी ज़िंदगी को तब्दील करके रहूँगा और मेरी ज़िंदगी में भी पॉज़िटिव चेंज आएगा। लेकिन आपको रास्ते नहीं मिल रहे हैं, रास्ते कुशादा नहीं हो रहे हैं, तो अल्लाह का ज़िक्र करें, इस्तग़फ़ार करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह को पढ़ा करें, दुरूद पाक को पढ़ा करें और जिस काम में भी कामयाबियाँ हासिल करना चाह रहे हैं, उस काम में प्रॉपर तरीके से, सही इन्फॉर्मेशन और तजुर्बे के साथ, दुरुस्त डायरेक्शन में कोशिशों को शुरू कर दें। आपके रास्ते भी खुलना शुरू होंगे इंशाअल्लाह ताला। जो इंसान इस्तग़फ़ार करता है, तौबा और इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह अपने उस बंदे से खुश होता है। दिल से, यकीन से इस्तग़फ़ार कीजिए। अगर आपकी ज़िंदगी में इस वक़्त अंधेरा है, तो रोशनी ही रोशनी हो जाएगी। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।